Remaining students, join the class quick fast. Lecture will be started very soon. All the students, join the class quick fast. Okay, let's start the lecture. I will share the screen now. Today we will discuss about the maximum likelihood sequence detection. So basically there are the three parameters we have to consider in this lecture. First one is the channel, second one is the maximum likelihood detection, and third one is the error probability. So first one is the channel. We have to consider the channel in two formation: delay spread, time dispersion. Delay spread include the three parameters, three ways. First one is the time dispersion, second one is the inter-symbol interference, that is known as the ISI, and the third one is the frequency selective fading. And another one is the channel model. There are the basically two type of channel model is considered: pass band PAM and base band PAM. First one is the channel model is considered is that the bits BK is given to the coder, and it will include in the transmitter section. The symbols are cover the AK and given to the transit filter GT. Okay, this is the first one block is the transmitter block, and the signal finally output signal transmitted signal is given to the channel, and the noise will be introduced during the channel, and it will be received at the receiver section. The downward will be the receiver section. Okay, so here the ट्रांसमीटर सेक्शन में कौन कौन सी चीज कवर हो रही है इस वाले सेक्शन में अपन देखें तो ये सेक्शन कवर करेगा बेसिकली फर्स्ट वन इज द कोडर इनपुट इज बिट सीक्वेंसेस इनपुट इज द बिट सीक्वेंसेस एंड द ट्रांसमीटर सेक्शन में क्या क्या आएगा कोडर आएगा और ट्रांसमिटिंग फिल्टर आएगा जी ऑफ टी द कोडर एंड द फिल्टर and these two sections are included into the transmitter block, and it will provide the signal S of t. It provides the signal S of t, and this signal is transmitted to the channel. Okay, noise part will be introduced during the signal is transmitted through the channel से जैसे transmit होगा तो error will be introduced. Okay, error क्या होगी additive manner की, so that's why it will be add in the this one portion. ओके फाइनली रिसीव्ड सिग्नल कहाँ गया जाएगा फिर रिसीवर सिग्नल पे रिसीवर पार्ट पर दैट इज द रिसीवर सेक्शन. रिसीवर सेक्शन में क्या है रिसीवर फिल्टर है टाइमिंग रिकवरी है सैम्पलर है डिसीजन डिवाइस है और एस्टिमेटेड ऑफ द सिंबल्स है और फाइनली सीक्वेंस आ जाएगी बी कैप ऑफ टी. ओके सो सबसे पहले कौन सा सेक्शन आएगा रिसीवर सेक्शन में कंसीडर करते सबसे पहले आएगा फिल्टर वाला सेक्शन. फिल्टर विल आल्सो हेल्प टू रिमूव द नॉइज वाला पार्ट टू रिमूव द नॉइज सेक्शन. तो फिल्टर अपन क्यों काम में लेंगे कि जो भी नॉइज वाला पार्ट जो इसमें इंट्रोड्यूस हुआ है उसको रिमूव आउट करने के लिए सबसे पहले सेक्शन कौन सा आएगा रिसीवर फिल्टर या फिल्टर सेक्शन. नेक्स्ट वाला सेक्शन कौन सा है इसमें ये टाइमिंग रिकवरी इज आल्सो रिक्वायर्ड बिकॉज ऑफ दैट ट्रांसमीटर और रिसीवर में क्या होनी चाहिए प्रॉपर सिंक्रोनाइजेशन प्रॉपर टाइमिंग. तो टाइमिंग रिकवरी इज आल्सो रिक्वायर्ड टू सिंक्रोनाइज इन बिटवीन द ट्रांसमीटर सेक्शन एंड द रिसीवर सेक्शन. इन दोनों सेक्शन ट्रांसमीटर सेक्शन और रिसीवर सेक्शन में प्रॉपर टाइमिंग प्रॉपर सिंक्रोनाइजेशन करने के लिए ये वाला सेक्शन या ये वाला ब्लॉक रेस्पॉन्सिबल होगा टाइमिंग रिकवरी वाला. ओके next given to the sampler. Okay, next given to the decision device and finally given to the decoder. and the decoder जैसे यहाँ encoder अपन काम में लेते हैं ट्रांसमीटर सेक्शन पे क्या था ट्रांसमीटर सेक्शन पे अपन क्या काम ले रहे थे एनकोडर. ट्रांसमीटर सेक्शन पे क्या रहेगा एनकोडर रिसीवर सेक्शन पे क्या रहेगा डिकोडर. इसका जस्ट रेसिप्रोकल एनकोडर का रेसिप्रोकल. तो फाइनली आउटपुट में कौन सी सीक्वेंस निकल के आएगी बी कैप ऑफ टी. So B of K is just similar to B cap of K. ये ट्रांसमिटेड है और ये इनपुट बिट सीक्वेंस है और ये रिसीव्ड बिट सीक्वेंस है. ओके
नेक्स्ट इज द डिस्क्रीट टाइम इक्विवेलेंट चैनल मॉडल फॉर PAM. इसको एनालिसिस करें. There is the discrete time equivalent channel model for PAM signal. PAM signal के पॉइंट ऑफ व्यू से अपन स्टडी करें तो फर्स्ट इसमें सेक्शन कौन सा गिवन है? फर्स्ट सेक्शन कौन सा है? बिट है B of K, कोई बिट सीक्वेंस है. फर्स्टली अपन इसको किस में देते हैं? कोडर वाले सेक्शन में. कोडर क्या करेगा? इसको एनकोड करेगा, एनकोडर वाला काम करेगा. एनकोडर के बाद अपन ने सिंबल क्रिएट्स करे AK. सिंबल्स अपन कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं? AK से. एंड फाइनली गिवन टू द बेस बैंड इक्विवेलेंट चैनल. ये वाला सेक्शन कौन सा है? चैनल है. दैट इज द चैनल. नॉइज इंट्रोड्यूस हुई ZK. नॉइज क्या है यहाँ पे? ZK. तो इस तरह से इसको सिंबल को आइडेंटिफाई करो. BK क्या है? इनपुट बिट्स हैं. AK क्या है? सिंबल्स हैं. ZK क्या है? एरर है. एरर विल बी इंट्रोड्यूस विद द ट्रांसमिटेड सिग्नल एंड द एरर को जैसे इंट्रोड्यूस करेंगे तो फाइनली आउटपुट कौन सा सिग्नल निकल के आएगा? QK. और QK सिग्नल कहां पे रिसीव होगा? रिसीवर सेक्शन पे. फाइनली QK अपने को क्या मिलेगा? रिसीवर सेक्शन पे. रिसीवर सेक्शन पे देने के बाद फाइनली गिवन टू द डिसीजन डिवाइस. डिसीजन डिवाइस से अपना कौन सा सिग्नल आइडेंटिफाई होगा? A कैप ऑफ T. और A कैप ऑफ T को अपन कैसे देंगे? डिकोडर में. एनकोडर का जस्ट रेसिप्रोकल रहेगा. ये जैसे यहाँ एनकोड अपन करेंगे ट्रांसमीटर सेक्शन पे, डिकोड अपन करेंगे रिसीवर सेक्शन पे. तो यहाँ डिकोडर करा. फाइनली बिट्स कौन सा निकल के आया? B कैप ऑफ K. ये वाला B कैप ऑफ K. तो इनपुट जो सीक्वेंस थी वो B ऑफ K था. आउटपुट जो सीक्वेंस आएगी B कैप ऑफ K आएगा. ओके. अब एक्सप्रेशन देखें. P of e raised to power j omega t that is equals to summation m equals to minus infinite to plus infinite g j omega minus 2 pi upon t into m b e j omega minus 2 pi upon t into m f function of j omega minus 2 pi by t upon m. ये इसका एक्सप्रेशन है. एक्सप्रेशन के रेस्पेक्टिव अपन आइडेंटिफाई करिए पर्टिकुलर सीक्वेंस को. नेक्स्ट एक और सेक्शन है एस जेड ऑफ ई रिस्ट पावर j ओमेगा t दैट इज इक्वल टू 2n0 by t समेशन m इक्वल टू माइनस इनफाइनाइट टू प्लस इनफाइनाइट मॉड ऑफ f j ओमेगा प्लस m 2 pi by t का होल मॉड का स्क्वायर. एक्चुअली ये चीज क्या है? इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म. जैसे अपन निकालते हैं ना e की पावर j ओमेगा t को पर्टिकुलरली अपन ने किस में कन्वर्ट कर दिया? ओमेगा वाली टर्म में. तो दैट इज द फ्रीक्वेंसी ट्रांसफॉर्म ऑफ द गिवन सीक्वेंस. ओके. ये पर्टिकुलर ब्लॉक डायग्राम है और ब्लॉक डायग्राम के रेस्पेक्टिव अपन इसका फ्रीक्वेंसी एनालिसिस करें. किस सिग्नल का है ये? डिस्क्रीट सिग्नल का. कौन सा सिग्नल है ये? डिस्क्रीट सिग्नल. तो डिस्क्रीट सिग्नल का फ्रीक्वेंसी ट्रांसफॉर्म एनालिसिस. नेक्स्ट है इसमें मैच फिल्टर एज रिसीवर फ्रंट एंड फर्स्ट. तो मैच फिल्टर बेसिकली एज ए रिसीवर फिल्टर. जो रिसीवर सेक्शन पे सबसे पहले जो फिल्टर सेक्शन रहेगा, सबसे वाला जो फिल्टर अपन कंसीडर करेंगे रिसीवर सेक्शन में, दिस वन, ये वाला जो है, ये दैट विल बी द मैच फिल्टर. रिसीवर सेक्शन दैट विल बी द मैच फिल्टर. ओके. सो द मैच फिल्टर एज ए रिसीवर फिल्टर. डिस्क्रीट टाइम इक्विवेलेंट चैनल मॉडल. डिस्क्रीट टाइम इक्विवेलेंट चैनल मॉडल के रेस्पेक्टिव अपन आइडेंटिफाई करें तो कौन सा फिल्टर अपन यहाँ काम में ले रहे हैं? मैच फिल्टर. मैच फिल्टर में नॉइज कौन सी कंसीडर करते हैं? गॉसियन नॉइज. गॉसियन नॉइज के रेस्पेक्टिव अपन उसका एनालिसिस करते हैं. नेक्स्ट मैच फिल्टर एज ए रिसीवर फ्रंट एंड. सेकंड ऑटो कोरिलेशन ऑफ द बेस बैंड रिसीवर पल्स शेप h of t. h of t का जो अपन ऑटो कोरिलेशन दिखाएं इस वाले इक्वेशन में देखें अपन. ऑटो कोरिलेशन दैट मीन द सिग्नल का उसके साथ ही रिलेशन. ऑटो कोरिलेशन दैट मीन द सिग्नल का पर्टिकुलर सिग्नल से ही रिलेशन. तो जैसे यहाँ अपन देख रहे हैं ये h of t है, ये h कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट ऑफ h of t है. दोनों का क्या अपन ने क्या बताया यहाँ पे? रिलेशन. कन्वोल्यूशन करा है दोनों का अपन ने. क्या करा है? कन्वोल्यूशन या सिंपल मल्टीप्लिकेशन के रेस्पेक्टिव फोरियर ट्रांसफॉर्म की प्रॉपर्टीज को यूज करते हुए यहाँ आइडेंटिफाई क्या करा है अपन ने? ऑटो कोरिलेशन ऑफ द पर्टिकुलर सिग्नल h of t. ओके. फोल्डेड स्पेक्ट्रम में अपन देखें. फोल्डेड स्पेक्ट्रम को ये क्या फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम रिप्रेजेंट करेगा. जब अपन फोरियर ट्रांसफॉर्म निकालते हैं तो एक्चुअली अपन क्या आइडेंटिफाई करते हैं? स्पेक्ट्रम, फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम. सो द फोल्डेड स्पेक्ट्रम इज दैट दिस वन इक्वेशन
k equals to minus infinite to plus infinite, h of k रो h of k e raised to power j omega kt, और ये फाइनल एक्सप्रेशन आ जाएगा किस टर्म में है, ओमेगा के रेस्पेक्टिव, ओमेगा के रेस्पेक्टिव, दैट इज द फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम ऑफ द गिवन पल्स, गिवन सिग्नल. थर्ड वन इज द वाइटनिंग ऑफ द मैच फिल्टर. फर्स्ट मैच फिल्टर के रेस्पेक्टिव एनालिसिस है ये. मैच फिल्टर के रेस्पेक्टिव देखें तो मैच फिल्टर इज कलर्ड नॉइज एस जेड ऑफ ई रिस्ट पावर जी ओमेगा टी 2n0 एस एच ई रिस्ट पावर जी ओमेगा टी. ये सारा एक्सप्रेशन किस में आ रहा है, फोरियर ट्रांसफॉर्म में, फोरियर फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम में. स्पेक्ट्रल फैक्टराइजेशन अपन देखें एस एच ऑफ जेड इक्वल टू ओ एम जेड एम ऑफ एम कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट ऑफ 1/z कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट. तो फाइनल आ जाएगा मिनिमम फेज एंड ऑल पास सिस्टम, दैट इज द एस एच ऑफ जेड इक्वल टू एच मिनिमम जेड एंड एच ए पी जेड. दोनों का मल्टीप्लीकेशन, सिंपली मल्टीप्लीकेशन करके अपन ऑल पास सिस्टम के लिए मिनिमम फेज के लिए आइडेंटिफाई सिस्टम को कर सकते हैं इसमें. Next is the widening of the Mage filter. Second, the equalization with the inverse minimal phase filter. The equalization with the inverse minimum phase filter. The input is R of t. Here is the input of R of t is given to the particular filter. Filter के बाद ये दिया इसमें sampler में या switching element में. स्विचिंग एलिमेंट के बाद ये सीधा सिंपली इसमें पास आउट कर दिया और फाइनली अपने पास क्या गया, जेड की. नॉइज प्रोसेस है द वाइट पावर स्पेक्ट्रम. वाइट पावर स्पेक्ट्रम अपन नॉइज का अपन देखें, जो वाइट गॉसियन नॉइज के केस में अपन नॉइज का अपन आइडेंटिफाई करें पावर स्पेक्ट्रल डेंसिटी, तो दैट विल बी द एस एन ऑफ जेड इक्वल टू 2n0/k. ये एक्सप्रेशन है, ये सारे एक्सप्रेशन है. नॉइज का एनालिसिस है, सिग्नल का एनालिसिस है, और उसके बाद ये ट्रांसमीटर और रिसीवर सेक्शन पे इसका एनालिसिस है. नेक्स्ट पार्ट इज द डिटेक्शन. एमएल डिटेक्शन ऑफ ए सिंगल सिंबल, एमएल डिटेक्शन फॉर सिग्नल वेक्टर, एमएल डिटेक्शन विद इंटर सिंबल इंटरफेरेंस, सीक्वेंस डिटेक्शन आर यूजिंग द थ्री बेसिक एनालिसिस मार्कोव चेन, सिग्नल जनरेटर एंड विटरबी एल्गोरिथम. तो फर्स्ट वन डिटेक्शन इज the process is that the estimation is related to transmitted signal is continuous value. Detection values is the transmitted signal is discrete value. Model for detection and this one model for the detection. अपन detection process को analysis करना by using the model section. So the detection is identify the estimation. सबसे पहले जो section आएगा that is the estimation. और एस्टिमेशन का किससे रिलेटेड करेंगे, ट्रांसमिटेड सिग्नल इज ए कंटिन्यूअस वैल्यू, ट्रांसमिटेड सिग्नल इज ए कंटिन्यूअस वैल्यू. नेक्स्ट इसके बाद आएगा डिटेक्शन. डिटेक्शन में क्या है, ट्रांसमिटेड सिग्नल इज ए डिस्क्रीट वैल्यू. ठीक है, एस्टिमेशन और डिटेक्शन को एनालिसिस करना तो एस्टिमेशन में क्या कंसीडर करते हैं, ट्रांसमिटेड सिग्नल इज ए कंटिन्यूअस वैल्यू. डिटेक्शन में अपन क्या एनालिसिस करते हैं, ट्रांसमिटेड सिग्नल इज ए डिस्क्रीट वैल्यू. ओके, दोनों में डिफरेंस है, ये कंटिन्यूअस वैल्यू के लिए, ये डिस्क्रीट वैल्यू के लिए. अब मॉडल फॉर डिटेक्शन क्या है, इनपुट लिया अपन ने x ऑफ k, x के, सिग्नल जनरेशन मॉडल अपन ने कंसीडर करा, नॉइज जनरेशन मॉडल कंसीडर करा, और फाइनली ऑब्जर्व कर लिया y ऑफ k. ठीक है, जैसे सिग्नल जनरेशन अपन ने बेसिकली कहाँ क्रिएट करते हैं, कहाँ एनालिसिस करेंगे, ट्रांसमीटर सेक्शन पे. ये कहाँ पे है, ट्रांसमीटर सेक्शन में. नॉइज जनरेशन मॉडल अपन कहाँ कंसीडर करते हैं, रिसीवर सेक्शन पे. नॉइज एक्चुअली कहाँ जनरेट होती है, चैनल से. तो ट्रांसमीटर, चैनल और रिसीवर. ठीक है, तो दो मॉडल्स को एनालिसिस करेंगे. एक सिग्नल जनरेशन जो ट्रांसमीटर के रेस्पेक्टिव है, नॉइज जनरेशन है जो नॉइज चैनल के थ्रू जो जनरेट हुई है, जैसे अपन वाइट गॉसियन नॉइज कंसीडर करें, मैच फिल्टर कंसीडर करें, तो उस केस में नॉइज जनरेशन मॉडल एनालिसिस करना, और फाइनली आउटपुट क्या जाएगा, y ऑफ k, x ऑफ k एंड द y ऑफ k, दैट इज यूजिंग इन द डिटेक्शन प्रोसेस. एमएल डिटेक्शन ऑफ ए सिंगल सिंबल के रेस्पेक्टिव देखें अपन डिटेक्शन प्रोसेस को, तो किस तरह से एनालिसिस करेंगे. एमएल डिटेक्शन ऑफ ए सिंगल सिंबल. द स्पेशल कॉफ ऑफ एमएपी डिटेक्टर इज PA इक्वल्स टू A कैप इक्वल्स टू कांस्टेंट.
कांस्टेंट के रेस्पेक्टिव ये वाला एक्सप्रेशन आइडेंटिफाई होगा। And ML choose of the A cap related to the omega A to maximize the likelihood, this one section, this one term, and measure of the equality of this one, error probability, error equality with respect to analysis with the error. Where the A cap is not equals to A, the error is determined, received error is determined when the A cap is not equals to A. ML detection of signal vector, vector of the symbols, maximize this one expression, Fy by S, Y upon S cap, Fn slash S, Y minus S, Fn equals to Y minus S cap. Equivalence to maximize this one expression in exponential formation, equivalent to minimization. Next, the ML detection with inter-symbol interference. The model is here is again consider input is xk. Xk is given to the signal generation model. Next signal generation model output is given to noise generation model, and the finally observe the yk. So input is xk and the observed value is the yk. Generator is the LTI filter hk. LTI filter के केस में क्या होगा? अब जैसे अभी तक अपन कौन से फिल्टर अपन काम कर रहे थे? मैच फिल्टर पे। इससे पहले जो भी अपन ने एनालिसिस करा है वो सारा किस पे था? मैच फिल्टर के रेस्पेक्ट। अब ये कौन सा फिल्टर अपन यहाँ कंसीडर कर रहे हैं? एलटीआई फिल्टर। एलटीआई इज द लीनियर टाइम इनवेरिएंट फिल्टर। एलटीआई इज द लीनियर टाइम इनवेरिएंट फिल्टर। LTI is the linear time invariant filter, and the LTI के केस में क्या ऑब्जर्वेशन आता है? The HK, the impulse response is between the value of K is 0 to M. Input signal data symbol for A, the model analyzes the A del K given to the HK and the simply adding the NK values and the finally is the YK. तो इसका मीनिंग क्या है कि इनपुट सीक्वेंस ली, उसको किससे मल्टीप्लाई करा? डेल के। डेल के इज द इम्पल्स फॉर्म, इम्पल्स फॉर्मेशन। इस पर्टिकुलर वैल्यूज को किसके रिलेटेड करा अपन ने? या एलटीआई फिल्टर के रेस्पॉन्स है। एलटीआई फिल्टर ये एच के इज रिलेटेड टू द एलटीआई फिल्टर रेस्पॉन्स, एलटीआई फिल्टर रेस्पॉन्स, एंड द एन के इज द नॉइज पार्ट, एन के इज द नॉइज पार्ट ड्यूरिंग द चैनल। ये इनपुट सीक्वेंस है, ये फिल्टर का रेस्पॉन्स है, ये नॉइज वाला रेस्पॉन्स है, और फाइनली आउटपुट वाई के आएगा। वेक्टर फॉर्मेशन में देखें तो y वेक्टर इज इक्वल टू h वेक्टर इंटू a इंटू n वेक्टर, दैट इज द वेक्टर फॉर्मेशन। तो अल्टीमेटली जो एनालिसिस अपन कर रहे हैं अभी तक जो देख रहे हैं उसमें जो एनालिसिस किसके रेस्पेक्टिव आया? एक तो इनपुट सीक्वेंस दिया, इनपुट सीक्वेंस को अपन ने किसमें दिया? फिल्टर रेस्पॉन्स में। फिल्टर रेस्पॉन्स के रेस्पेक्टिव आउटपुट अपन ने जनरेट करा, नॉइज को इंट्रोड्यूस करा और फाइनली आउटपुट y के एनालिसिस कर लिया। इज इट क्लियर? Next is the sequence detection. Sequence detection is the Markov chain signal generator, the Viterbi algorithm. There are the three parts, three ways to analyze the sequence detection. First one is the Markov chain, second one is the Markov chain signal generator, and third one is the Viterbi algorithm. First one is the Markov chain, the independent of the past values P related to psi k plus 1, psi k and psi k minus 1. Homogeneous if independent of A, and the finally is the state diagram. Just observe this one section, the Markov chain section, independent of the past values. So consider the expression for the independency of the past values, this one, and the homogeneous if the independent of the k values. Okay, and this one is the state diagram. State diagram is related to 0 to 1, 0 is related to 0, 0, and the 1 is related to 0, 1. This is the state diagram. This one is state diagram. This one is state diagram. Input is 0, 1. Output is this one. And 0 to 1 is the 1, 1. And 1 to 0 is 1, 0. This is the state diagram representation. Next is the Markov chain signal generator.
sequence of homogeneous Markov chain state. This one state transition is the Sk is this one expression. Observation function is considered here one, and the state of the shift register is this one expression. Particularly, the expression are identified for the Markov chain signal generator. First one expression is the sequence of the homogeneous Markov chain status that is represented by the psi of k. State transition Sk is equal to G psi k comma psi k plus 1, and the observation function is given this one section. Observation which is G equals to psi k comma psi k plus 1 is equals to summation I equals to 0 to m h I k a of k minus 1. The observation function basically is related to the particular value of h I. I is changed from I equals to 0 to m, and the a k minus 1. Okay. State of the shift register. State of the shift register is represented by the values of this one. Psi k equals to x k minus 1, x k minus 2 up to x k minus m, where m is changed from 0 to m. तो ये वाला जो पार्ट है, ये वाला सेक्शन है, दैट इज द स्टेट ऑफ द शिफ्ट रजिस्टर रिलेटेड टू द मार्कोव चेन सिग्नल जनरेटर. Next is the Viterbi algorithm. A Viterbi of the UCLA in 1967 is provide the particular algorithm, a homogeneous Markov chain linear complexity grouping with the message length k application for maximization of the problem. The sequence of the Viterbi algorithm, second, the sequence of the input is equal to path through the trellis. Assign the branch matrix yk minus sk ka mod square. Path matrix is the summation of the branch matrix. Choose the lowest path matrix is equal to minimize of the y minus s cap. As per the consider of the Viterbi algorithm, there is the two path or the two ways survive up to the times k minus 1. That is the k minus 1. The both are related to the k. Survival path of k minus 1 is equal to smallest path matrix to the node k minus 1. Only hold the survivor path, and the for node k choose the smallest branch matrix plus survival path of the k plus 1. The Viterbi algorithm example के point of view से consider करें, the observation sequence is 0.2, 0.6, 0.9 and 0.1. Impulse response of the channel are identified. इसके respective देखें example को. Viterbi algorithm के respective, तो observe the sequence. Sequence पहले first of all sequence consider करी. Observe the sequence. The values are the 0.2, 0.6, 0.9 and 1.0. Impulse response of the channel is identified. इस particular channel के अगर impulse response देखें तो वो किस तरह से इसमें identify कर रखा है. Hk equals to del k plus 0.5 del k minus 1. Del k अगर present value तो k minus 1 क्या है? Previous value. Just previous value. Additive wide Gaussian noise channel AWGN, and the state transition, that is the state diagram related to 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1. So first one is given to the 0, 0.1, second one is the 1, 1.0, third one is the 0, 0.5 and the last one is the 1, 1.5. तो इसके respective ही अपन example या इसका analysis कर सकते हैं particular given sequences values के. ठीक है. तो ये आज के लेक्चर में कोई इश्यू या कोई प्रॉब्लम हो तो वो मुझसे तुम डिस्कशन कर सकते हो अभी. और बाकी मैं इसके नोट्स है, ये नोट्स भी मैं अपलोड कर दूंगा, और जो आज का ये वीडियो लेक्चर है ये कॉलेज के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे भी मैं अपलोड कर दूंगा. तो वहाँ इसको देख सकते हो. पढ़ो बेटा, नोट्स को पढ़ो, बुक से स्टडी करो. बुक्स में ऑलरेडी बता चुका हूँ. ये वीडियोज हैं, इनको देखो, इनको समझो, और कोई दिक्कत या कोई प्रॉब्लम या कोई इश्यू आता है तो मुझसे डिस्कशन करो. ठीक, मैं अटेंडेंस लेता हूँ. अनुजा Present sir. अर्पित Present sir. मुस्कान Present sir. संतोष Present sir. ओके. ठीक है बेटा, है ना. पढ़ो और कोई डाउट या कोई इश्यू हो तो मुझसे डिस्कशन करो. ओके, थैंक यू.